Jurist Association, and Delhi High Court. He has also conducted various training programs and workshops in various institutes. Following him are Mr. Laveen Arora and Mr. Rajiv Gogia, who are senior software developer in Proud Technologies and are still working with this company for the last 3 years. Now, I would request Mr. Naresh Kalra to please carry forward the presentation on ASP.NET with team members. Good morning, everybody. First of all, I thanks management, coordinators, faculty members, and all the students present here for this warm welcome. Just excuse me. Yes. Today, we are going to organize a 2 hours technical seminar for software skills development. Basically, I know as it is very important for the students of engineering to know what is happening in the corporate world, which type of technology is available, and as I know all the students are doing very well, but at the same point of time, students must come forward to grab all the opportunities which comes in your way by the way of this type of seminars, trainings, maybe part of your summer training, maybe your project training, that should be the part of your job. Today, we want to tell you how this is happening, how a software company runs, what are the basic ideas to develop a software. We want to tell you website and applications कैसे develop होती हैं. The things behind that, I just give you a basic overview about my company. This is a software development company, Proud Technologies Private Limited. In this company, we develop softwares as per specific needs of our clients. And as already Madam told that we are working with Honorable Supreme Court of India. Excuse me, sorry. Excuse me. As I told you that we are working with Supreme Court of India, Honorable Delhi High Court, and some of our prestigious clients like Delhi Stock Exchange. We have developed the application for these clients, and we want to tell you how this occurs. हम एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं, वेबसाइट्स कैसे बनती हैं, डोमेन्स कैसे बुक किए जाते हैं. कैन आई आस्क वन क्वेश्चन फ्रॉम यू? डोमेन क्या होता है, किसी को मालूम है? Just raise your hands, please. Can you please stand and tell me what is? Yes, that is right. Any other person? Nobody knows. You are the engineering guys. और डोमेन सिर्फ एक स्टूडेंट है जिसको पता है डोमेन क्या होता है. We want to tell you what is domain, along with hosting, along with database connectivity, and how this occurs. आप सबके अंदर क्वालिटीज हैं. राइट नाउ आई थिंक यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ एमसी सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर, फोर्थ सेम, मे बी सेकेंड ईयर. आप सबको ये पता होना चाहिए कि डोमेन्स क्या होते हैं. अभी एक बच्चे को मालूम है कि यस डोमेन क्या होता है, लेकिन आप सबको मालूम होना चाहिए डोमेन होता क्या है. आज हम आपको विद इन द शॉर्ट स्पैम ऑफ 1.5 hour, वट एवर टाइम वी हैव, वी विल ट्राई अवर बेस्ट टू एक्सप्लेन यू द टेक्निकल थिंग्स एंड हाउ दिस विल हैपन. आज हम आपको सबसे पहले ये बताएंगे कि हम ASP.NET विद C# में क्या कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं और कैसे C# हैं. That should be given to you, the process by the technical overview. And if we are getting the overview, very good overview from your side, then we want to conduct a summer training in your institute. And after the successful training, we will provide you a certificate. We are a NESCOM certified company. हमारा सर्टिफिकेट 2 months की जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग होगी, दैट शुड बी टोटली प्रैक्टिकल. आप समझ रहे हैं प्रैक्टिकल? आई नीड एनी आंसर फ्रॉम योर साइड. व्हाट डू यू मीन बाय प्रैक्टिकल ट्रेनिंग? आपने किसी लाइव प्रोजेक्ट पर काम किया हुआ है? किया होगा आई थिंक, या नहीं किया हुआ? किस प्रोजेक्ट पर? सम एनी वन पर्सन कैन स्टैंड एंड टेल मी.
क्या किया आपने? It's a college management system. वेरी राइट. All the announcement management system and all the blogging types of things are embedded into a system. I have made a website. आपने वो वेबसाइट के अंदर उसको इंटीग्रेट किया है, वो बनाया है. तो दैट शुड बी योर कॉलेज प्रोजेक्ट और यू आर डूइंग इट एट योर ऑन लेवल? फ्रीलांसिंग. आर यू एबल टू मैनेज द थिंग्स? अपने लेवल पर आप बना रहे हैं? कैसे बना रहे हैं? सपोज मैंने आप किस टेक्नोलॉजी पर बन रही है? PHP पर. ओके. तो दैट शुड बी राइट नाउ टुडे वी वांट टू गिव यू द बेसिक ओवरव्यू. प्लीज सिट डाउन. थैंक यू. PHP पर काम कर रहे हैं, दैट्स ओके. PHP भी एक अच्छी लैंग्वेज है, लोग काम कर रहे हैं, कंपनीज काम करती हैं. बट हम आपको आज ASP.NET विद C# के बारे में बताएंगे. हम जो ट्रेनिंग देना चाहते हैं वो .NET पर देना चाहते हैं. सपोज हमारे पास आज दिल्ली हाई कोर्ट की एक वेबसाइट का ऑर्डर आया हमारे पास. वेबसाइट कहने को ये वेबसाइट है, बट दैट शुड बी एन एप्लीकेशन. उनकी रिक्वायरमेंट है दैट वी नीड इन C#. हमें ASP.NET की कोडिंग चाहिए विद विंडो सर्वर. लाइनेक्स और विंडो सर्वर का कंपैरिजन, आई थिंक ऑल ऑफ यू पीपल आर स्टडिंग इन योर बुक्स. लाइनेक्स और विंडो में क्या कंपैरिजन है? कुछ आइडिया है आपको थोड़ा बहुत कि लाइनेक्स और विंडोज क्या होता है? हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है कि हमें एक वेबसाइट एप्लीकेशन बनानी है जो विंडो पर काम करेगी, विंडो सर्वर होगा उसके बैकएंड में. देन वी विल गो फॉर ASP.NET विद C#. PHP पर एप्लीकेशन बनाकर विंडो सर्वर पर अपलोड नहीं की जा सकती. हम आपको बिल्कुल थोड़ा सा ये आइडिया देंगे विद द शॉर्ट स्पैम ऑफ दिस टाइम कि हम एप्लीकेशंस किस तरह से बना रहे हैं, उसके लिए डोमेन कैसे बुक हो रहा है, होस्टिंग कैसे होती है, डेटाबेस की कनेक्टिविटी कैसे होती है. दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स. कोई टाइम नहीं लगेगा. आज आई थिंक आप सबके अंदर वो टैलेंट है, बट वी वांट टू पॉलिश यू. आप सेकेंड ईयर में हैं, आप फर्स्ट ईयर में हैं, डजंट मैटर. आप MCA कर रहे हैं, आप BCA कर रहे हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है. हम चाहते हैं, हम आपको पॉलिश कर कर आपके अंदर वो क्वालिटीज डालना चाहते हैं, सो दैट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री, व्हेन यू विल गो फॉर एनी जॉब, आपके अंदर वो सब नॉलेज होनी चाहिए. बीइंग ए डेवलपमेंट कंपनी, आज हमारे पास कोई स्टूडेंट आता है या हम रिक्रूटमेंट हायरिंग के लिए हम कॉल करते हैं, तो हमारे पास जो बच्चे आते हैं उनको कुछ नॉलेज नहीं होती. व्हाट इज द मोटिव टू कम हियर? हमारा मकसद यहां पर आने का क्या है? हम आपको वो सब कुछ सिखाना चाहते हैं. आप 3 साल का कोर्स करने के बाद, MCA करने के बाद, व्हेन यू विल गो टू मार्केट, तो आपके अंदर वो क्वालिटीज होनी चाहिए कि आपको इमीडिएट सिलेक्ट किया जाए. आई विल गिव यू द एश्योरेंस कि हमारा ये 8 वीक्स का ट्रेनिंग मॉड्यूल है. आप में से कोई भी ये ट्रेनिंग मॉड्यूल लेगा हमारे से, वो करेगा, दैट शुड बी इन योर कॉलेज ओनली. ये आपके कॉलेज में ही हम ट्रेनिंग कंडक्ट करवाएंगे. आप उस कोर्स को करने के बाद इन्फोसिस में भी अप्लाई करोगे तो आई विल गिव यू द इंश्योरेंस कि आपके अंदर इतनी नॉलेज आ जाएगी कि आप टेक्निकल राउंड या HR राउंड इमीडिएटली क्लियर कर लोगे. सारे बच्चे एक जैसे नहीं है. कोई 50% है, कोई 60% है, कोई 90% है. हर बच्चे के अपना IQ है, उसकी अपना विजन है. मैं विजन से मुझे एक ध्यान आया, आपका क्या विजन है? किसी को पता है आपने विजन क्या बनाया हुआ है? आई थिंक सबके अपने विजन होंगे. हर स्टूडेंट के माइंड में कुछ ना कुछ है कि मुझे पढ़कर क्या करना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे क्या करना है. आप MCA कर रहे हैं तो आपको क्या करना है इसके बाद? एनीबॉडी? कोई भी थोड़ा सा आइडिया, किसी के भी माइंड में कुछ भी है, आप बताओ हमें. वी वांट टू, आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि आपके मन में क्या है. नो नीड टू हेजिटेट. नोबडी इज देयर. कोई विजन नहीं है, किसी का भी विजन नहीं है. हाउ यू विल, कैसे आप आगे जाओगे? आपका विजन नहीं है. मैं अपना विजन बताता हूं. वी आर ए सॉफ्टवेयर कंपनी. हमारा विजन राइट नाउ, वी आर ए टर्नओवर ऑफ ओनली 2 करोड़ रुपीस पर ईयर. मेरा 10 साल का विजन है, दैट शुड बी ए प्राउड टेक्नोलॉजी विल बी ए CMM level 5 कंपनी विद इन 10 years एंड वी हैव ए टर्नओवर ऑफ 1000 करोड़. दिस इज माई विजन. यही विजन आप सबका भी होना चाहिए. आपको क्या करना है? किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को अपना बिजनेस करना है, किसी को अपनी दुकान पे बैठना है. यू मस्ट हैव टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू इन फ्यूचर. आने वाले टाइम में आप क्या करना चाहते हैं, किस तरह से करना चाहते हैं. आई थिंक दैट्स एप्रिशिएटेड. नो, आपका विजन नहीं होगा तो आप काम कैसे करोगे? व्हाट यू विल डू? हम ये जो ट्रेनिंग आपको देना चाहते हैं, इसके बाद हम आपको सर्टिफिकेट भी देंगे. along with that, this training will be totally practical. along with we will tell you how to हार्डवेयर का भी काम आपको सिखाया जाएगा. आप में से कितने स्टूडेंट्स को हार्डवेयर का काम आता है? सपोज मैं कहता हूं मेरा कंप्यूटर या लैपटॉप खराब हो गया, उसको ठीक करना किसको आता है? किसी को आता है? ऑल ऑफ यू आर द इंजीनियर गाइस. आप सब इंजीनियर हैं यहां पर.
मुझे थोड़ा सा जवाब दीजिए, एक इंजीनियर को कंप्यूटर आपका खराब हो गया, आप कहां जाते हैं? सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर वाले क्या करते हैं? उसको रिपेयर करते हैं, और जो वो रिपेयर कर रहा है वो कौन है? वो भी तो एक इंजीनियर ही है ना। आई वॉन्ट दैट क्वालिटीज इनसाइड यू। आपके अंदर वो सब क्वालिटीज होनी चाहिए। एक हार्डवेयर इंजीनियर काम कर रहा है तो मींस कंप्यूटर को फॉर्मेट करना कितनी देर का काम है? हार्डली इट विल टेक 10 to 20 मिनट्स, 10 मिनट्स मैक्सिमम, नॉट 20 मिनट्स। अगर जो मैं आपको ये बता दूं कि अपना सिस्टम फॉर्मेट कैसे करना है, नो नीड टू गो टू एनी हार्डवेयर इंजीनियर। ये सब काम आप खुद भी कर सकते हो अगर जो कोई आपको बताए। अगर जो कोई नहीं बता रहा तो हाउ यू कैन डू इट? यू कांट डू दिस। आई जस्ट गिव यू एन ओवरव्यू। अभी मैं आपको एक साइट खोलकर दिखाता हूं, उस साइट को कैसे बनाया गया है, उसको साइट को बनाने के लिए क्या टेक्नोलॉजी यूज की गई है। देन आई विल कॉल मिस्टर राजीव गोगिया, ही विल बी देयर टू टेल यू ऑल द फीचर्स ऑफ एसक्यूएल, माईसीक्यूएल एंड ऑल एसक्यूएल क्वेरीज, कैसे डेटाबेस कनेक्ट किए जाते हैं, कैसे होस्टिंग की जाती है। मैं एक साइट खोलकर अभी दिखाता हूं आपको ना, जस्ट अ मिनट। This is a website which is made by us. Basically this is a content management system है, ये CMS बोलते हैं हम इसको अपनी लैंग्वेज में। हमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आई कि मुझे एक वेबसाइट बनानी है जिसके अंदर कुछ भी कंटेंट जो उसका ऑनलाइन चल रहा है दैट शुड बी ऑपरेटेबल बाय देयर ओन एंड। क्लाइंट ने कहा कि मेरी साइट बनाओ जिसके अंदर जो भी बटन्स हैं, लाइक दिस वन, दिस इज होम, अबाउट अस, डिमेंशिया, मैं इसके अंदर कुछ भी चेंज कर लूं अपने आप विदाउट एनी टेक्निकल सपोर्ट। हमने उनको सजेस्ट किया यू हैव टू क्रिएट ए CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। हमने एक एप्लीकेशन बना के दी जिसके अंदर वो अपनी मर्जी से कुछ भी चेंज कर सकते हैं। आई जस्ट गिव यू एन ओवरव्यू लाइक दिस वन, दिस इज अबाउट अस। अबाउट अस में देयर इज द प्रोफाइल ऑफ दैट कंपनी। बेसिकली दिस इज एन NGO. दिस NGO वर्क्स फॉर Alzheimer. Alzheimer is a disease, for that they work and we have to create this type of buttons. ये बटन्स हमने बनाए कैसे हैं, इसके बैकएंड पर क्या कोडिंग की गई है। सबसे पहले वी हैव टू बुक दिस डोमेन hopekasha.org. .org is the extension for organization. .com is for like this same. If it is the organization then the domain is .org. क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने उनका डोमेन बुक किया, हमने उनको होस्टिंग प्रोवाइड की, देन वी क्रिएट दिस डिजाइन. दिस इज इन HTML. ये डिजाइन जो दिख रहा है आपको, ये पिक्चर्स जो आ रही हैं, ये बटन जो आ रहे हैं, ये सब HTML के अंदर बने हुए हैं. देन हमारा काम है, हम .NET एप्लीकेशंस बनाते हैं. हमने उनको .NET में कन्वर्ट किया बाद में. दिस इज अबाउट .spx. दिस इज द नेम ऑफ द पेज. My friend Mr. Rajiv will explain you the technical things after 10 minutes, how these buttons are created. I want to show you the admin panel. हमने एक साइट बनाई, साइट बनकर ऑनलाइन कर दी, पूरे वर्ल्ड वाइड ये चल रही है, क्लाइंट इसको एक्सेस कर रहे हैं. इसके बैकएंड पर क्या काम किया गया है, ये बनी कैसे है, इसके अंदर एडमिन पैनल क्या बनाया गया है, वो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये चली कैसे है. साइट बनाना HTML में डिजाइनर का काम है, डिजाइनर ने साइट बनाई, हमें दे दी, हमने उसको ऑनलाइन कर दिया. ऑनलाइन का मतलब, डू यू अंडरस्टैंड अबाउट होस्टिंग? क्या होता है होस्टिंग? वन पर्सन सर्वर पर डालना. कितनों को आती है? हाउ मेनी ऑफ यू नो होस्टिंग? ओनली वन पर्सन, बिकॉज ही इज वर्किंग एज ए फ्रीलांसर. एनीबॉडी अनदर? नो. होस्टिंग मीन्स whatever the data is available along with us, we will upload on the server. सर्वर कहां पर है? जो सैटेलाइट से ऑपरेट हो रहा है, और पूरे वर्ल्ड वाइड हमारे पास इसके लाइसेंस हैं. उस लाइसेंस के थ्रू हम ये होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट्स को. हमारे क्लाइंट्स हमें पे करते हैं. वी विल चार्ज फ्रॉम देम एंड गिव देम द सर्विसेज. मैं हर बच्चे को ये बताना चाहता हूं कि सॉफ्टवेयर कैसे बनाए जाते हैं, होस्टिंग कैसे होती है, डेटाबेस जो हम बना चुके हैं इसके बैकएंड पे आपको पता होना चाहिए. बीइंग इंजीनियर, आप लोग इंजीनियर है, आने वाले टाइम के तो इंजीनियर है ना. यू डोंट हैव एनी विजन राइट नाउ. आपके पास आज कोई विजन नहीं है, पर आने वाले टाइम में आप सबको कोई ना कोई एक टारगेट है कि आपने कहां पहुंचना है. आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 15 ईयर्स, आप सबके टारगेट हैं. दिस विल बी द पार्ट ऑफ योर टारगेट. ये आने वाले टाइम में आपको ये सब कुछ आना चाहिए. कोई जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ एनी
मेरा विजन क्या है, क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, दैट इज ओके, डिग्री इज रिक्वायर्ड। अगर जो आपको नॉलेज है, नो नीड ऑफ एनी क्वालिफिकेशन। आई विल गिव यू वन एग्जांपल, व्हेन राजीव विल फिनिश आई विल गिव यू वन एग्जांपल। एजुकेशन के लिए सिर्फ डिग्री चाहिए, अदरवाइज नो नीड। आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए, आपके अंदर नॉलेज होनी चाहिए, आपको नॉलेज है, आपको कुछ काम आता है। क्वालिफिकेशन तो बाद में, ठीक है, इन्फोसिस ने रखा है जी एमसीए चाहिए, एमसीए के बिना नहीं रखना, बट अगर जो आपको काम करना आता है, सॉफ्टवेयर बनाना आता है, पीछे से कनेक्टिविटी करनी आती है, तो दैट इज वैल्यूएबल, उसी को काउंट किया जाएगा। दैट इज द टेक्निकल थिंग्स, वो सब हम आपको सिखाना चाहते हैं एज ए पार्ट ऑफ योर समर ट्रेनिंग। 8 हफ्ते की ट्रेनिंग जो हम देना चाहते हैं, 8 हफ्ते में आज 2 घंटे में तो आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहे हैं, बट ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग वी विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग। एंड ऑफ द ट्रेनिंग आप सबके अंदर इतनी काबिलियत आ जाएगी कि आप सब लोग एक वेबसाइट बना लें, एक डेटाबेस बना लें, या एक सीएमएस क्रिएट कर लें। दिस इज हार्ड कोड कोडिंग कॉन्सेप्ट। सीएमएस क्रिएट करना हर किसी को नहीं आता। डिजाइनर जो डिजाइनिंग का कोर्स करते हैं वो डिजाइन का काम कर सकते हैं, बट इसके पीछे जो कोडिंग की हुई है, मैं आपको अभी खोलकर दिखाता हूं कि उस कोडिंग के अंदर क्या किया गया है। आई जस्ट ओपन दिस वन। कुछ समझ आ रहा है आपको जो मैं बोल रहा हूं? क्लियर है या कुछ लग रहा है जी मैं बोलता जा रहा हूं, आपको कुछ समझ आ रहा है ना? अच्छा लग रहा है? वेरी गुड। अल्टीमेटली अगर जो मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं आपको समझ आना चाहिए। मैं बोलता जा रहा हूं, आपको समझ नहीं आ रहा, उसका कोई यूज नहीं है। एंड वन मोर थिंग, आफ्टर द फिनिशिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट वी विल गिव यू वन फीडबैक फॉर्म। हम आपको फीडबैक फॉर्म देंगे। आपके अंदर कुछ भी है रिलेटेड टू आईटी, रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर, रिलेटेड टू योर कैरियर, कुछ भी आपके माइंड में आप उस फीडबैक में लिखना, हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे। आप कुछ सीखना चाहते हैं, आप कुछ बनना चाहते हैं, दिस इज द टाइम टू पॉलिश यू। ये आपके पास जो अगले 6 महीने या नेक्स्ट 1 ईयर है, इसी टाइम में आप अपने आप को इतना पॉलिश कर लो कि इमीडिएट यू विल गेट द जॉब। उस फीडबैक फॉर्म में आप सब कुछ लिख दो, आपको कुछ भी जानना चाहते हो, क्योंकि आई थिंक हाउ मेनी पीपल आर अवेयर अबाउट ASP.NET विद C#? कितने लोग जानते हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स। गुड, कम है। C# जो कोडिंग है आज की डेट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट वर्जन है, गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है। हमने सुप्रीम कोर्ट बार के साथ काम किया है, ऑलरेडी वी आर वर्किंग विद द सुप्रीम कोर्ट बार। दिल्ली हाई कोर्ट के सॉफ्टवेयर ऑलरेडी हम बना चुके हैं। वी गॉट एन ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ नाइजीरिया। दिल्ली हाई कोर्ट का ई कोर्ट्स का कॉन्सेप्ट, ई फाइलिंग का कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज फॉर कमिंग 3 मंथ्स। 3 महीने के अंदर हमें उनका प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज करना है। एंड दैट शुड बी टोटली ऑल दोस थिंग्स आर ऑन ASP.NET विद C#। लेटेस्ट फ्रेम, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी। आप PHP में काम कर रहे हैं, जैसे आपने बताया PHP में, दैट्स ओके। आपको बहुत ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत होगी आने वाले टाइम में, व्हेन योर एप्लीकेशन विल बी पॉपुलर लाइक facebook.com। आज फेसबुक जो चल रही है सारी PHP पर बनी हुई है, याहू PHP पर बना हुआ है, बट वो पुरानी एप्लीकेशन है, पहले की बनी हुई है। आज नई एप्लीकेशन कोई भी PHP में नहीं बन रही, क्योंकि लाइनेक्स सर्वर के साथ साथ नई टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं। आज अगर जो हम बात करें, वी आर एसोसिएटेड विद सम यूनिवर्सिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क की कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिनके साथ हम बैकएंड पर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कुछ पार्टिसिपेंट कर रहे हैं। यू कैन गो टू अवर वेबसाइट एंड जस्ट क्लिक ऑन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हम किन यूनिवर्सिटीज के साथ अटैच हैं, उनके साथ हम क्या काम कर रहे हैं, यू कैन गेट द डिटेल्स फ्रॉम दैट वन। आपको ऐसी यू विल गेट द इंफॉर्मेशन लाइक दैट कि आपने सोचा भी नहीं होगा। किसी ने गूगल ग्लास का नाम सुना है? एनीबॉडी? गूगल ग्लास नहीं सुना? आने वाले टाइम में ऑलरेडी दिस इज डेवलप्ड। गूगल ने ये गूगल ग्लास ऑलरेडी डेवलप कर दिया है। आपको एक ग्लास मिलेगा गूगल की तरफ से, जो एज ए स्पेक्स आप यूज करोगे। आपने जहां जाना है, कुछ भी करना है पूरे वर्ल्ड में, एक छोटा सा क्लॉक की तरह मॉनिटर होगा, वहां से आप ऑपरेट करोगे और वो ग्लास में ही आपको सारी डायरेक्शंस मिलेंगी। दिस इज ऑलरेडी इन द मार्केट बट इट इज ऑन द पायलट रन। यस, नॉट इन इंडिया। इंडिया तो अभी 5 साल बाद सोचेगा इन चीजों के लिए। वो लोग ऑलरेडी सोच चुके हैं और वो कर चुके हैं। हमने अभी दिल्ली हाईकोर्ट का वर्चुअल टूर बनाया पूरे वर्ल्ड में। आई कैन से यू, पूरे वर्ल्ड में ऐसा वर्चुअल टूर किसी का भी नहीं है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हमें उसके लिए रिकमेंड किया और उसके लिए हमें इसके लिए बोला गया कि आपने वर्चुअल, आई वांट टू शो यू द थिंग्स आल्सो। हमने क्या बनाया उनके लिए। आने वाला टाइम टोटली 3D, 5D, 7D के ऊपर है। गूगल ने गूगल ग्लास जो लॉन्च किया है, इसके लिए आपको इतनी फैसिलिटीज मिल जाएंगी। आपकी टैबलेट, आपके मोबाइल, आपके लैपटॉप सब खत्म होने वाले हैं। आने वाले 5 से 10 साल के अंदर ये सब खत्म हो जाएगा।
एंड दोज पीपल आर ऑन दैट ट्रैक. हम तो सोच भी नहीं पाएंगे, आप में से किसी को नहीं पता गूगल ग्लास क्या है. देयर आर सो मेनी थिंग्स जो हमें पता ही नहीं है आज तक, वो आप सबको पता होनी चाहिए. बिकॉज एज ए गाइज ऑफ इंजीनियरिंग, आप सब लोग इंजीनियर हैं. कोई सॉफ्टवेयर में जाएगा, कोई हार्डवेयर में जाएगा, या कोई सैप करेगा, कोई सैस करेगा, या कोई ओरेकल करेगा. वट एवर टारगेट यू विल डिफाइन, दैट इज अप टू यू. हम आपको वो सब कुछ बताना चाहते हैं जो हमें पता है. थोड़ा पता है, ज्यादा पता है, लेकिन हमारे को जो नॉलेज है वी वांट टू एक्सप्लोर इट बाय द वे ऑफ दिस टाइप ऑफ सेमिनार्स एंड दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग्स. मैं अभी आपको इसका एडमिन पैनल खोलकर दिखाता हूं. एक एप्स एडमिन वन. पासवर्ड भी निकल रहा भाई. एडमिन कंट्रोल. ठीक है ना, एक मिनट देखो. ठीक. दिस इज द बैकएंड कंट्रोल. उस वेबसाइट के बैकएंड पर जो हमने एडमिन पैनल क्रिएट कर दिया है. एडमिन लाइक दैट कस्टमर कैन यूज इज एज ए लेमैन. आम आदमी की तरह वो इस एप्लीकेशन को यूज करेगा जिसको कोडिंग नहीं आती. अगर जो उसको कोडिंग आती हो तो वो तो हमारी तरह इंजीनियर बन जाएगा ना. हमने उसको ये एप्लीकेशन बना के दी कि आप अपने घर पर बैठे बैठे इस साइट के अंदर कुछ भी अपलोड कर लो, एडिट कर लो, डिलीट कर लो, वट एवर यू वांट टू डू. आपने कोई फोटोज ऐड करनी है, आपने कोई न्यूज ऐड करने, ये मैं एक छोटा सा मॉड्यूल दे रहा हूं. इट्स वेरी बेसिक मॉड्यूल. हमें इसको बनाने में हार्डली इट विल टेक 2 आवर्स. अगर जो यही काम मैं आपको बनाने के लिए दूं, आपको 10 दिन लग जाएंगे, तब भी आप बना नहीं पाओगे, क्योंकि आपको अभी ये आता नहीं है. वी आर द प्रोफेशनल पीपल. हमारा रोज का काम है, हम ये क्लाइंट के लिए बना रहे हैं. हमने उनको ये बना के दिया. इसके अंदर मॉड्यूल्स बने हुए हैं लाइक दिस वन. एडमिन होम पेजेस के अंदर 11 ड्रॉप डाउन में बटन्स बने हुए हैं. वट एवर अवेलेबल ऑन देयर साइट. ये बैकएंड पर ऑपरेट हो रहा है. ये किसी भी को भी ऑनलाइन दिखाई नहीं देगा. ऐसे कनेक्टिंग केयर गिवर्स, पोइट्री, मेल एंड न्यूज, इमेज गैलरी, ये हमने 5 ओवरव्यू बनाकर दिए हैं. आई वांट टू टेल यू बाय ओपनिंग दिस. लाइक होम पेज, दीज आर द ओवरव्यू फॉर होम पेज. इफ आई वांट टू चेंज समथिंग इन होम, अबाउट अस, वट एवर द बटन्स आर देयर, मैं यहां पर जाकर कुछ भी अपलोड कर सकता हूं. आई वांट टू शो यू समथिंग. कैसे ये मैं अपलोड करूंगा. सपोज मेरे को अबाउट अस में कुछ चेंज करना है. राइट नाउ आई एम टॉकिंग एज ए लेमैन, कि मैं आम आदमी बन के बात कर रहा हूं कि मैं कैसे चेंज करूंगा. मेरे घर पर ये साइट है जिसने मुझे एक्सेस दिए हुए हैं. मैं इसके अंदर जाकर अपनी मर्जी से कुछ भी ऐड कर दूं या डिलीट कर दूं. दिस इज द बेसिक ओवरव्यू. इसके अंदर कोई भी मैटर डालेंगे. अबाउट अस का नीचे ये मैटर चल रहा है, ये पिक्चर उनकी चल रही है.
अभी ये सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं. सपोज मैंने यहां पर कुछ भी चेंज कर दिया, आई विल डू इट फॉर टेस्टिंग ओनली. मैंने अबाउट अस के अंदर 1 2 1 2 1 3 लाइक दिस वन ऐड कर इसको अपलोड कर दिया. ये आपको बेसिक आइडिया दिया जा रहा है. इसके बैकएंड की कोडिंग क्या है वो हम आपको अभी बताएंगे कि इसके बैकएंड पे कोड क्या लिखा गया है, उस कोडिंग का करने का क्या कॉन्सेप्ट है. ओके, यस यस, वी विल स्टार्ट द कोडिंग पार्ट राइट नाउ. जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे यू विल गेट द कोडिंग. अभी हम आपको इसके बैकएंड की कोडिंग भी डिफाइन करेंगे कि ये एडमिन के बटन्स कैसे बने हैं, लॉगिन आईडी के पासवर्ड्स कैसे बने हैं. दैट आई विल कॉल मिस्टर राजीव. ही जस्ट कम एंड एक्सप्लेन यू द कोडिंग पार्ट. लॉगिन पैटर्न्स कैसे बने हैं, टेबल्स कैसे बनी है बैकएंड पर. जो ये होम अबाउट अस के मैंने आपको बटन्स दिखाए थे, वो बटन्स के पीछे कोडिंग क्या लिखी गई है, उनका लिखने का क्वेरीज कैसे एग्जीक्यूट की गई हैं, वो सब हम आपको डिफाइन कर रहे हैं अभी. यू कैन सी दिस इज ऑनलाइन नाउ. मैंने उसके अंदर चेंजेस किए थे 1 2 3 1 2 3. दिस इज ऑनलाइन, डायरेक्ट ऑनलाइन. हमने बैकएंड पर जो चेंज किया वो यहां पर डिफाइन हो रहा है. अब इसको कैसे किया गया है दैट विल बी एक्सप्लेन्ड बाय मिस्टर राजीव. राजीव प्लीज कम एंड एक्सप्लेन द कोडिंग बिहाइंड दैट एंड गिव द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट ASP.NET C#. थैंक यू. Back, I'm seeing someone sleeping there. I saw that few minutes back. You guys might be feeling bored, but this is a reality because in this session we just want to give you the detail of what we are going to do in future. Like अगर आप 2 महीने की ट्रेनिंग लेते हैं हमसे, so आप लोग जैसे MCA कर रहे हो, right? आप लोग अभी सेकेंड ईयर में हो एंड फाइनल ईयर में what एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं. अगर मैं फाइनल ईयर में हूँ, लेट्स से इफ आई एम इन फाइनल ईयर, मैं उस वक्त ये सोच रहा था कि मुझे फ्यूचर में करना क्या है. एट दैट टाइम आई वॉज नॉट प्रिपेयर फॉर द .NET थिंग. एंड फाइनल सेमेस्टर में व्हेन आई वॉज आस्क्ड टू सबमिट द फाइनल प्रोजेक्ट, आई वॉज थिंकिंग कि मैं किस टेक्नोलॉजी को यूज़ करूँ. सो मेरे एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि गो फॉर द .NET टेक्नोलॉजी एंड ही गेव मी सम सजेशंस फॉर दैट. और उससे क्लियर हुआ मेरा कंसेप्ट कि येस, कि .NET टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जिससे रिलेटेड चीज़ें मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ. एंड दैट हेल्प मी टू वर्क हेयर एंड बिकॉज ऑफ विच आई एम वर्किंग हेयर फॉर लास्ट 3 years. सो बिफोर टू बिगिन, and I just want to give you my brief introduction that I am Rajiv Gogia and working with Proud Technologies for last 3 years, and I started my career in .NET technology